चक्रवात फेंजाल शनिवार देर रात पुडुचेरी के नजदीक पहुंचा। चक्रवात का असर केंद्र शासित प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर पड़ा। यहाँ रविवार को भी रोजमर्रे की जिंदगी अस्त व्यस्त थी। चक्रवात के साथ भारी बारिश हुई। नतीजा निकला कि खासकर रिहायशी इलाकों में काफी पानी भर गया। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई। பெஞ்சாங் புயல் புதுச்சேரிக்கு அருகில் நேற்று மாலை 5:30 மணி அளவில் கரையை கடக்க துவங்கி நேற்று இரவு 10:30 மணிக்கும் 11:30 மணிக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் கரை கடந்துள்ளது। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात फेंजाल की वजह से सबसे ज्यादा बारिश पुडुचेरी में हुई। கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3 இடங்களில் அதி கனமழையும் 6 இடங்களில் மிக கனமழையும் 20 இடங்களில் கனமழையும் பதிவாகியுள்ளது। அதிகபட்சமாக விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலத்தில் 50 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது। புதுச்சேரியில் 46 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது। இதுவே இதுவரை பதிவான மழையின் அளவை தரவுகளின் அடிப்படையில் பொறுத்தவரையில் அதிகபட்ச மழையாகும்। चेन्नई हवाई अड्डे का कामकाज आधी रात को शुरू हुआ। इसे एहतियातन एक दिन पहले बंद कर दिया गया था। हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 24 घरेलू उड़ानें रद्द हुईं और 26 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने जाने में देरी हुई। Actually, my departure was yesterday. Due to that cyclone, the flight got cancelled yesterday. Airport is completely closed, and there are a lot of chaos inside the domestic and international airport also. So, but unfortunately, we couldn't go to our destination yesterday. So we came to go to Coimbatore today. So today it was very clean. All the flights are resumed today. लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए कई इलाकों में राहत अभियान चल रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन चढ़ने के साथ चक्रवात कमजोर होगा। चक्रवात फेंगल की वजह से शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षित रखने के मकसद से पुडुचेरी के तट पर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को समुद्र तट पर जाने से रोकने के लिए समुद्र तट सड़क का पूरा हिस्सा और कई मशहूर पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। For the last 4 days, we have been deploying staff across Puducherry beaches, and we have already advised fishermen not to venture into the sea, and we have also advised people who are staying in low-lying areas to be careful, and we have told them regarding the shelter homes. From last night, due to high waves, we have closed all the beaches, and we are advising general public and tourists not to come to the beaches. We have deployed nearly 300 police personnel across the beaches of Puducherry, and all the other police personnel are also on standby. At police station, we are also having reserve forces, and NDRF personnel have also come to Puducherry, and we are in coordination with them. महाबलीपुरम में लोगों को सड़कों पर पानी भरने और बिजली कटौती जैसी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। 3 बजे से दुकान खोल रखे है, करंट नहीं है, पानी हो रहा है, बहुत अनर्थ तूफान हो रहा है, कस्टमर सब नहीं आ रहा है, बिजनेस धंधा नहीं है। चक्रवाती तूफान के तेज होने से चेन्नई शहर से आने जाने वाली उड़ान सेवाओं पर काफी असर पड़ा है। हालात को देखते हुए हवाई अड्डे के अधिकारियों ने फ्लाइट ऑपरेशन को शाम तक रोक दिया है। With very difficulty, much of rain and cloud, the airport, no flight is coming. All the flights are diversified to Bangalore. My son is coming from Australia via Malaysia. I'm waiting for him. Just I don't know how he will come. We are waiting for flights without knowing what is the revised plan. So as per schedule, we are supposed to check in at 10 o'clock, but still they keep changing the time. Almost stuck here with no food and water. We are looking for some support from airlines. अधिकारियों के मुताबिक राहत और बचाव के काम के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। तमिलनाडु सरकार ने पहले ही 30 नवंबर को शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित कर दिया था। वहीं उसने आईटी कंपनियों से अनुरोध किया था कि वे अपने कर्मचारियों से घर से ही काम करवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान फेंगल 30 नवंबर की देर शाम तक आ सकता है।
इसके असर से तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। अभी जो साइक्लोन फेंगल साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी के, और वो लगभग 100 किलोमीटर दूर चेन्नई के है। तो ये धीरे धीरे स्लोली वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा और लैंड को टकराएगा। अब साइक्लोन के होते हुए उसका 70 to 80 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर जो विंड स्पीड रहने का संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हम तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हमने रेनफॉल वार्निंग दिया है। वेरी हेवी, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कुछ कुछ जगह में होगा, उसका वार्निंग आज है। और जैसे कि ये आगे तरफ बढ़ेगा वेस्टवर्ड में, तो कल के लिए भी हमारा तमिलनाडु के ऊपर वार्निंग है। और उसके साथ साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटका एंड केरला के लिए भी कल वार्निंग है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। Under influence, as it crosses, we may get very rainfall over the north districts, coastal districts. We have given that 1 or 2 places extremely heavy rainfall, and as it moves, the adjacent states will get districts. Adjacent districts we get 1 or 2 places heavy to very heavy. As of now, the fishermen are advised not to venture to the seas for next 2 days. चक्रवाती तूफान फेंगल के असर से शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। इस बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई जगहों पर पानी भी भर गया। चक्रवात फेंजाल शनिवार देर रात पुडुचेरी के नजदीक पहुंचा। चक्रवात का असर केंद्र शासित प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर पड़ा। यहां रविवार को भी रोजमर्रे की जिंदगी अस्त व्यस्त थी। चक्रवात के साथ भारी बारिश हुई। नतीजा निकला कि खासकर रिहायशी इलाकों में काफी पानी भर गया। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई। பெஞ்சாங் புயல் புதுச்சேரிக்கு அருகில் நேற்று மாலை 5:30 மணி அளவில் கரையை கடக்க துவங்கி நேற்று இரவு 10:30 மணிக்கும் 11:30 மணிக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் கரை கடந்துள்ளது। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात फेंजाल की वजह से सबसे ज्यादा बारिश पुडुचेरी में हुई। கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 3 இடங்களில் அதி கனமழையும் 6 இடங்களில் மிக கனமழையும் 20 இடங்களில் கனமழையும் பதிவாகியுள்ளது। அதிகபட்சமாக விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலத்தில் 50 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது। புதுச்சேரியில் 46 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது। இதுவரை பதிவான மழையின் அளவை தரவுகளின் அடிப்படையில் பொறுத்தவரையில் அதிகபட்ச மழையாகும்। चेन्नई हवाई अड्डे का कामकाज आधी रात को शुरू हुआ। इसे एहतियातन एक दिन पहले बंद कर दिया गया था। हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 24 घरेलू उड़ानें रद्द हुईं और 26 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने जाने में देरी हुई। Actually, my departure was yesterday. Due to that cyclone, the flight got cancelled yesterday. Airport is completely closed, and there are a lot of chaos inside the domestic and international airport also. So, but unfortunately, we couldn't go to our destination yesterday. So we came to go to Coimbatore today. So today it was very clean. All the flights are resumed today. लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए कई इलाकों में राहत अभियान चल रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन चढ़ने के साथ चक्रवात कमजोर होगा। चक्रवात फेंगल की वजह से शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षित रखने के मकसद से पुडुचेरी के तट पर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को समुद्र तट पर जाने से रोकने के लिए समुद्र तट सड़क का पूरा हिस्सा और कई मशहूर पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। For the last 4 days, we have been deploying staff across Puducherry beaches, and we have already advised fishermen not to venture into the sea, and we have also advised people who are staying in low-lying areas to be careful, and we have told them regarding the shelter homes. From last night, due to high waves, we have closed all the beaches, and we are advising general public and tourists not to come to the beaches.
We have deployed nearly 300 police personnel across the beaches of Puducherry, and all the other police personnel are also on standby at police station. We are also having reserve forces, and NDRF personnel have also come to Puducherry, and we are in coordination with them. महाबलीपुरम में लोगों को सड़कों पर पानी भरने और बिजली कटौती जैसी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। 3 बजे से दुकान खोल रखे है, करंट नहीं है, पानी हो रहा है, बहुत अनर्थ तूफान हो रहा है, कस्टमर सब नहीं आ रहा है, बिजनेस धंधा नहीं है। चक्रवाती तूफान के तेज होने से चेन्नई शहर से आने जाने वाली उड़ान सेवाओं पर काफी असर पड़ा है। हालात को देखते हुए हवाई अड्डे के अधिकारियों ने फ्लाइट ऑपरेशन को शाम तक रोक दिया है। With very difficulty, much of rain and cloud, the airport, no flight is coming. All the flights are diversified to Bangalore. My son is coming from Australia via Malaysia. I'm waiting for him. Just I don't know how he will come. We are waiting for flights without knowing what is the revised plan. So as per schedule, we are supposed to check in at 10 o'clock, but still they keep changing the time. Almost stuck here with no food and water. We are looking for some support from airlines. अधिकारियों के मुताबिक राहत और बचाव के काम के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। तमिलनाडु सरकार ने पहले ही 30 नवंबर को शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित कर दिया था। वहीं उसने आईटी कंपनियों से अनुरोध किया था कि वे अपने कर्मचारियों से घर से ही काम करवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान फेंगल 30 नवंबर की देर शाम तक आ सकता है। इसके असर से तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। अभी जो साइक्लोन फेंगल साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी के, और वो लगभग 100 किलोमीटर दूर चेन्नई के है। तो ये धीरे धीरे स्लोली वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा और लैंड को टकराएगा। अब साइक्लोन के होते हुए उसका 70 to 80 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर जो विंड स्पीड रहने का संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हम तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हमने रेनफॉल वार्निंग दिया है। वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कुछ जगह में होगा, उसका वार्निंग आज है। और जैसे कि ये आगे तरफ बढ़ेगा वेस्टवर्ड में, तो कल के लिए भी हमारा तमिलनाडु के ऊपर वार्निंग है, और उसके साथ साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटका एंड केरला के लिए भी कल वार्निंग है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। Under influence, as it crosses, we may get very rainfall over the north districts, coastal districts. We have given that 1 or 2 places extremely heavy rainfall, and as it moves, the adjacent states will get districts. Adjacent districts we get 1 or 2 places heavy to very heavy. As of now, the fishermen are advised not to venture to the seas for next 2 days. चक्रवाती तूफान फेंगल के असर से शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। इस बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई जगहों पर पानी भी भर गया।